Hello everyone, welcome back to lecture number 2, continuation of motion chapter. So in last class we discussed about distance and displacement. So distance is what? Total path length travel, and displacement is what? Shortest distance between initial and final position due to change in position. Okay? अब यहाँ पे हम ना उसको थोड़े दूसरे वे से डिस्कस करते हैं. रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन और रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन. सो रेट ऑफ का मतलब क्या हो गया ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यू आर कंपेयरिंग, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यू आर कंपेयरिंग. फॉर एग्जाम्पल यू टेक, if there is an object, this is A and this is object at point A and is going to point B, so it will move, so there is a change in position. So now you are going to relate it with the time. So you are saying the object is going from A to B in 1 second, then it is your first observation. Then second observation is this object is going from A to B in 2 seconds. You are saying when it is going in 1 second it's faster, and when it is going in 2 seconds it's slower. So it's mean that you are talking about the rate. The rate, what is the rate? Anything which is compared with respect to time. If anything is studied with respect to time is called the rate. Like if you consider like you must have seen the advertisement bike and all का कि 40 km per hour. So 1 hour में 40 km चला गया. So 1 hour में how much distance it has traveled is basically rate. We are talking the rate, whether it's fast or slow. Like अगर हमें बाइक बाय करनी है और बाइंग एनी व्हीकल, तो हमारा टास्क होता है कि अपना स्पीड को देख रहे हैं कि in 1 hour how many kilometers it is going to travel. So you are talking about the rate, means whether it will travel faster or slower. That is your task. So fast and slow can be determined in terms of what? Rate, rate or change of position. So यहाँ पे क्या होगा? This is what we can say when you are talking the fast and slower. You can say rate of change of position. Rate of change of position. Rate of change of position will decide whether it's faster or it's slower. So if it is taking less time to change a particular distance, then you can say it's faster. If it is taking more time, then you can say it's slower. But there are again two terms. Like when it is going in a straight line, there's no issue. But there is a problem. Like it's going from B to C, then it's going from C to D in that way. As we took the previous case, we took this example. So when it is going from A to B, B to C, C to D. So what is happening? कि when you are taking the distance, तो distance में क्या होगा? This value will add, this value will add, this value will add. Then you are finding कि distance travel is very large in number or in terms of magnitude, and whatever time taken you take with respect to that, so you are finding a sufficient quantity. So you are having a greater amount of distance travel, and then accordingly you are having time. But they are saying कि when you are taking in terms of displacement, there's a twist in story. They are saying time will be same. Like ये अगर इसको लगा रहेगा 10 minutes, this one taken 5 minutes, this value took 8 minutes, तो 10 plus 5 plus 8, 23 seconds, 23 minutes. So it is traveling from A to B, B to C, C to D. So if you are taking in terms of distance, तो we can say that it has traveled a lot. Distance तो काफी हो गया ना, because you are adding all. So 23 minutes में उतना distance travel किया तो ये बहुत अच्छा है. But when you are talking about in terms of displacement, what is happening? When you are taking in terms of displacement, so when it is going from A to D, now it's a shortest distance. Then you are finding this in this direction, in this specific direction, whatever rate of change of position you are having, that is very less. So we are getting two things. We are getting rate of change of position in terms of distance. Then we are getting rate of change of position in terms of displacement. So distance in the sense rate of change of position in terms of only magnitude, rate of change of position in terms of magnitude as well as direction. तो हमने क्या लिया? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड. सो सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड, इट्स मीन दैट डिस्टेंस, ओनली मैग्नीट्यूड इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डिस्टेंस. तो चेंज इन पोजीशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस इज one condition. Second, in terms of magnitude as well as direction. So we are taking both conditions in this case. So when both things are happening, then what will happen?
it will represent displacement. Okay, so change in position is nothing but the distance or displacement, or is related to motion. So whatever total means the separation between two positions will be distance or will be displacement. Without direction will be distance, with the direction will be displacement. So that change in position with respect to time will turn into what? तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर ना चेंज इन पोजीशन ओनली मैग्नीट्यूड में हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा स्पीड, और जो चेंज इन पोजीशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर होगा वो होगा वेलोसिटी. अब दोनों के लिए हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं. तो एज यू कैन अंडरस्टैंड दिस विल बी व्हाट स्केलर क्वांटिटी एंड दिस विल बी व्हाट वेक्टर क्वांटिटी. गॉट इट. एंड वन मोर पॉइंट जो हमने इसके पहले यूज किया था फॉर द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, distance will be only positive. Similarly, speed will be only positive, and displacement can be positive, displacement can be negative, displacement can be zero. Similarly, velocity can be positive, velocity can be negative, velocity can be zero. Almost similar type of things. When you are comparing distance and displacement, they will have 2 points very common. First point, distance scalar quantity, speed scalar quantity. When we are on the displacement vector quantity, velocity vector quantity. Next one, distance will be only positive, speed will be also only positive, but displacement and velocity, displacement will be positive, can be negative, can be zero. Similarly, velocity can be zero, can be positive, and can be negative, can be zero, positive, and negative. Understood? Now we are going to write down the formula. So what is the speed? So formula for speed is what? Total path length traveled. Total path length travel या total distance travel, whatever you want to take. Total path length travel, or you can say total distance travel. Total distance travel. Okay. Upon total time taken. Total time taken. Okay. And the same thing can be average speed also. So अगर आपने average speed का फॉर्मूला लिया तो भी आप इसके लिए सेम स्टेटमेंट यूज कर सकते हो. टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल और टोटल टाइम टेकन. नाउ वी आर गोइंग टू टेक velocity. So what's the velocity? Velocity is what? Displacement. Correct? Displacement. Displacement upon, but time तो टोटल लेना होगा. This time also, this time also, this time also upon total time taken. Upon total time taken. Okay. The way I said, speed and average speed का formula can be same. Similarly, when you are talking about the average velocity, will the formula remain same or can be different? So average velocity will be average velocity. It's initial velocity plus final velocity upon 2. So वैसे ना इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं. इनिशियल वेलोसिटी के लिए नोटेशन u होता है, फाइनल वेलोसिटी के लिए नोटेशन v होता है. लेटर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट इन मोर डिटेल, बट फॉर राइट नाउ जस्ट यू अंडरस्टैंड u and v are two terms. u is initial velocity and v is what? Final velocity. Now we are going to do one or two numerical based on this to make this concept more clear. So let's see what is happening. And formula we will keep over here only. अच्छा, वेलोसिटी का ना देखो, अब एक और होता है ना एवरेज वेलोसिटी को, ये फॉर्मूला भी एक्ट कर सकता है. दिस फॉर्मूला कैन आल्सो हेल्प इन एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हो जाएंगे. एवरेज स्पीड को वही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. सो विल सी वन एग्जांपल. एग्जांपल में कैसा होता है, यू टेक अ ट्रैक ऑफ you imagine 30 kilometer. So this is the point A and this is the point B. So track का value is what? 30 kilometer. ठीक है. So you can mention body travels from A to B in 2 hours and returns back to A in 1 hour. तो क्या करना है? Find out
एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो आवर टास्क इज टू टारगेट एवरेज स्पीड पे देख लेते हैं। सो बेसिकली अगर आपको ना इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू, बट विल सी व्हाट इज हैपनिंग। फर्स्ट केस when we are on the average speed, so what is the average speed? Average speed, if you remember formula, so I am not going to write, अच्छा चलो ठीक है, formula भी लिख लेते हैं। total distance travel, total distance travel है total path length travel, total path length travel upon what? total time taken, total time taken। so what's the total path length travel? so body is going from A to B, so A to B गया तो कितना हो गया, वो 30 हो गया। then is coming back from B to A, तो वो कितना हो गया, 30 हो गया। when it was going, body was going, तो कितना 2 hours लगा था। जब बॉडी वापस आ रहा था तो 1 hour लगा था। तो कितना हो जाएगा वैल्यू इसका, ये हो गया 60/3, कैंसिलेशन के बाद कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे टोटल पाथ लेंथ का यूनिट होगा मीटर और टाइम का यूनिट होगा सेकेंड, तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट विल बी मीटर और ये टाइम टेकन विल बी सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड विल बी यूनिट। ये एवरेज स्पीड हो गया। बट व्हाट अबाउट द एवरेज वेलोसिटी? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का यू कैन सी एवरेज वेलोसिटी इज वेरी सिंपल। अगेन वही हो गया, या तो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, बट वी डोंट नो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू सेलेक्ट दिस फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ट्रिपल टी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बॉडी विल स्टार्ट फ्रॉम ए, विल गो टू बी एंड अगेन विल कम बैक टू ए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। एंड टोटल टाइम टेकन कितना था, 2 hours plus 1 hour, तो क्या होगा 0/3, will not make any sense, तो क्या हो जाएगा 0। अच्छा ये मीटर पर सेकंड मैंने गलत दे दिया, यहाँ पे डिस्टेंस तो किलोमीटर है ना, टोटल पाथ ट्रैवल किसके टर्म में है, किलोमीटर के टर्म में, तो इसका यूनिट होगा किलोमीटर, और यहाँ पे क्या हो गया आर हो गया, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये होगा किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये किलोमीटर में ट्रैवल है तो किलोमीटर, टाइम कितना सेकंड में है तो मीटर आर में है, तो किलोमीटर आर लोगे। और अगर ये मिनट होता तो मिनट मीटर पर मिनट होता, और अगर ये आर में होता तो मीटर पर आर होता, या अगर ये किलोमीटर पर सेकंड तो किलोमीटर पर सेकंड होता, किलोमीटर पर मिनट हो सकता है, किलोमीटर पर आर हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि ना डिस्टेंस किस टर्म में और आपको जो टाइम है वो किस टर्म में, बट जो आइडियल यूनिट हमें लेना है, मतलब कि जो ऐसा यूनिट सिस्टम है वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो आपका टास्क यही होना चाहिए कि जो स्पीड है, देखो स्पीड और वेलोसिटी दोनों को हम ना v से डोनेट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको ध्यान देना है कि कब हमें ना स्पीड निकालना है, कब हमको वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या करना है। सो अगर हमको डिफाइन करना है व्हाट इज द स्पीड एंड व्हाट इज द वेलोसिटी, तो स्पीड इज व्हाट, ये टाइम है ना, एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड द रेट। तो यू विल से रेट ऑफ चेंज of distance, rate of change of distance जो होगा that will be what, speed। so rate of change of distance is called as speed, and what, rate of change of displacement, rate of change of displacement, जो rate of change of displacement होगा that is called as velocity, ये velocity हो गया। what it, when we have to define, so anything divided by time can be considered the rate of, ठीक है, बिकॉज दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर आपके पास यहाँ पे कोई क्वांटिटी है, समझो कि ये z है अपॉन t है, तो क्या रेट ऑफ ये क्या चेंज ऑफ z होगा, या कुछ भी हो सकता है, चेंज ऑफ होगा या इंक्रीज ऑफ z होगा, डिक्रीज ऑफ z होगा, जो भी होगा, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा था, इसका मिला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो z कोई क्वांटिटी हो वो चेंज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, या समथिंग इज हैपनिंग टू दैट वन। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ z, एंड z में क्या हो रहा है दैट वी नीड टू सी कि क्या क्राइटेरिया है। अब एक पॉइंट होता है टाइप ऑफ मोशन, यहां पे अगर टाइप ऑफ मोशन में ये वो वाला टाइप नहीं हो गया, लीनियर मोशन में जो है ना टाइप ऑफ मोशन, लीनियर मोशन में टाइप ऑफ लीनियर मोशन, टाइप ऑफ लीनियर मोशन, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट हो गए,
एक जो पार्ट हो गया वो गया यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और जो दूसरा टाइप हो गया वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. So what is the difference in these two terms? So they are saying if body covers equal distance in equal interval of time, if body covers equal distance in equal interval of time, then motion is said to be uniform. So यहाँ पे क्या होता है, body covers equal distance in equal interval of time, equal interval of time. So if we have to take example, you can say कि like you take time, तो मैं यहाँ पे ले लेगा इस फ्रेम में. So like you are taking a time 0, ठीक है. डिस्टेंस को ना मैं अगर यहाँ पे जैसे अभी ये टाइम 0 हो गया, डिस्टेंस को हम दो नोटेशन से यूज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डिस्टेंस को क्या कर सकते हो आप, डिस्टेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ये इसकी भी जरूरत बहुत पड़ेगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो नोटेशन हो सकता है. आप या तो x यूज कर लो और आप s यूज कर सकते हो, कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो. तो मैं अभी यहाँ पे x ले रहा हूं, तो जो पोजीशन 0 है, फिर क्या बोल रहा है कि 1 सेकेंड के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 मीटर ट्रेवल करेगा. ठीक है, तो देखो ना 0 से 1 सेकेंड के बीच में 1 मीटर. अब बोल रहा है 2 सेकेंड अभी होगा, मतलब 1 से 2 के बीच में, ये कहां पहुंचेगा, ये पहुंचेगा 2 मीटर पे. तो ये देखो ये टाइम इंटरवल कितना है. सो बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो ये टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड है. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मीटर. अब ये टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, अगेन 1 सेकेंड. बट ये कितना डिफरेंस है टाइम डिस्टेंस के टर्म में, 2 मीटर, मतलब 1 मीटर, 2 minus 1 मीटर ओनली. अब समझो थर्ड सेकेंड आई एम टेकिंग, तो नाउ बॉडी विल रीच टू व्हाट, 3 मीटर. सो अगेन यू सी टाइम इंटरवल कितना, 1 सेकेंड, 2 to 3, 1 सेकेंड का डिफरेंस, 2 मीटर टू 3 मीटर, 1 मीटर का डिफरेंस. You can take time as 4 seconds. And what is the distance travel? 4 meter. So when body travels equal distance in equal interval of time, मतलब equal distance, ये distance होगा, इस interval में distance है, इस interval में distance है, इस interval में distance है, इस interval में distance है. तो ये interval में जो time interval है वो क्या है, same है. So traveling equal distance, जैसे यहाँ पे जो value difference होगा, यहाँ value difference है, इस यहाँ पे जो difference है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर. So every 1 second पे वो कितना ट्रेवल करा, 1 मीटर ट्रेवल करा. तो दैट कैन बी यूनिफॉर्म मोशन. सो इसमें क्या होता है, आप पोजीशन को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वेयर विल बी द पार्टिकल आफ्टर सम टाइम, और व्हाट विल बी द पोजीशन एंड ऑल यूजिंग सम इक्वेशंस. विल डिस्कस अबाउट इट. इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हाट हैपेंस, बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस. इन दिस केस व्हाट हैपेंस, बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time, in equal interval of time. So we'll see example for this also. So you imagine time का condition कैसे लेते हैं, the way we took before. तो t as 0 seconds, t as 1 second, t as 2 second, t as 3 second, and t as you can take 4 seconds. So in beginning distance was 0, but now body will have 1 meter distance. Now body is having 7 meter distance. Now body is having this 9 meter distance. Now body is having 13 meter distance. If you see the interval over here, यहाँ पे 1 meter है. What is the interval over here? 6 है. What's the interval over here? 2 है. And what's the interval over here? 4 है. You can see traveling distance, different distances, unequal distances in, or time interval you can say 1 second, this also 1 second, 1 second, 1 second. So in equal interval of time, it is covering in unequal distance. That's why it can be considered as a non-uniform motion. तो अभी हमारा जो मेन टास्क है ना, हम कंसिडर करेंगे यूनिफॉर्म मोशन को, कि जब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है तो क्या होगा और कैसे होगा. ठीक है, सो यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी. सी वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है तो किस तरह से पोजीशन चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है. यूनिफॉर्म मोशन में आप चीजों को क्या कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो. तो जो उसका स्पीड होता है ना, वो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा. देयर विल नॉट बी एनी काइंड्स ऑफ चेंज इन द स्पीड. ठीक है, सो स्पीड की जो वैल्यू है ना वो फिक्स है, मतलब कितना डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, तो स्पीड की वैल्यू आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो. तो आप कितने भी दूर तक चले जाओ, स्पीड की वैल्यू आपको वही मिलता रहेगा. गॉट इट. सो अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं.
अब आप समझ लो ना, एक नया टर्म है, उस टर्म को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, अब अगर ना मान लो स्पीड और ना वेलोसिटी में तो बेसिक डिफरेंस है क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी कैन बी सेम, स्पीड एंड वेलोसिटी कैन बी सेम इन मैग्नीट्यूड, ओनली डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्शन का। सो जो स्पीड होगा ना उसका डायरेक्शन जब चेंज होगा तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इमेजिन करो कि कोई बॉडी है, ठीक है, ये ए से बी तक गया, ठीक है, फिर बी से क्या हो गया, सी तक गया। तो मान लो यहां पे किससे मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और ये यहां पे भी किससे मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जब बॉडी ना ए टू बी तक जाता है तो आई एम ऑब्जर्विंग टू थिंग्स। क्या मैंने ऑब्जर्व किया, जो उसका स्पीड है ना वो क्या है, कांस्टेंट है, बट व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंजेस। बट अभी क्वेश्चन ये है कि कैसे चेंज हो गया, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंजेस। स्पीड में क्या होता है, बिकॉज स्पीड क्या होता है, स्पीड डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, does not change due to change in direction, करेक्ट। डायरेक्शन चेंज होने से स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो सेम मैग्नीट्यूड से मूव कर रहा है तो स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट वेलोसिटी में क्या होता है कि दो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन चेंज हो गया फिर भी क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। आप बताओगे, वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है ना कि वेक्टर का क्राइटेरिया होता है, आपका वेक्टर चेंज हो जाता है अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया या उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो वेलोसिटी में सेम हो गया, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज होगा, दोनों में से कोई भी क्वांटिटी चेंज होगा, देन इट्स मीन वेलोसिटी विल चेंज, दो इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन चेंज हो गया, सो वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी स्पीड में रिमेन सेम। और एक और पर्टिकुलर पॉइंट है जो हमने इसके पहले, जो वेलोसिटी होता है या स्पीड होता है, जो स्पीड होता है और वेलोसिटी को अगर आप रिलेट करोगे तो स्पीड कैन बी इक्वल टू और कैन बी ग्रेटर देन वेलोसिटी। स्पीड जो होता है ना वो वेलोसिटी के इक्वल हो सकता है और ग्रेटर होगा, वो कभी उससे लेस नहीं होगा। अंडरस्टूड? स्पीड जो होगा वो वेलोसिटी के इक्वल हो सकता है और उससे ग्रेटर हो सकता है, बट उससे लेस कभी नहीं होगा। अब ये इक्वल कब होता है? जो स्पीड और वेलोसिटी कब इक्वल होते हैं? स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल कब होगा? ये तब इक्वल होता है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। जब तक स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वो क्वांटिटी सेम हो सकती है, अदरवाइज जो स्पीड की वैल्यू होगी वो वेलोसिटी से क्या होगा, हमेशा ज्यादा ही होगा। अब तक हमने डिस्कस किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विल गिव यू स्पीड और वेलोसिटी। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इफ यू आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इफ यू आर टेकिंग दैट विल बी स्पीड, बट इफ यू आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन दैट विल बी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो वैसे ही क्या होता है कि जो स्पीड और वेलोसिटी है, उसको मैं फोकस करूं तो अगर मैं लेता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इफ आई एम टेकिंग द टर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैंने यहां पे यूज किया है टर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब अगर मैं इस टर्म पे फोकस करता हूं चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका मतलब पहले वेलोसिटी कुछ अलग होगी, बाद में वेलोसिटी अलग होगी, तो उस टर्म को अगर आप एम्फेसाइज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इट कैन बी रिटन एज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, और अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन टाइम। तो अब ये किस क्वांटिटी को प्रोवाइड करता है? ये चीज आप समझ लेना कि जैसे अभी कोई ना ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ऐसे जा रहा है, देखो ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और सडनली ये चेंज हो गया, ये अभी भी 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी हो गया ना, यहां से यहां तक में क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंजेस।
ठीक है। या दूसरा एग्जांपल ले लो आप कि बॉडी क्या जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब इसके बाद जब आगे जाता है तो इसकी स्पीड हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे भी आप ये यूज कर सकते हो वेलोसिटी चेंजेस, क्योंकि वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेलोसिटी डिपेंड करता है या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो और डायरेक्शन चेंज हो। तो अगर ना स्पीड का मैग्नीट्यूड, जो मोशन का जो स्पीड फास्टर और स्लोअर का जो रेट है उसका मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है लाइक 20 से 30 हो गया तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया। बट अगर आप इमेजिन हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो स्पीड भी चेंज हो गया, यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों चेंज होगा। इस केस में क्या है कि स्पीड की क्वांटिटी सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया। तो इस केस में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसमें भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज होने से क्या होता है कि जो बॉडी होता है ना उसका स्पीड नया मिलता है। तो आइदर स्पीड विल बी अप और स्पीड विल बी डाउन, दो कंडीशन हो सकता है। वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है ना वो बॉडी को एक्सेलरेशन देता है, तो वो एक्सेलरेशन की क्वांटिटी को बताता है। तो ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो इफ यू आर डिफाइनिंग एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी। ये इसको लिखोगे आप पर यूनिट, ये अपॉन को लिखोगे पर यूनिट टाइम। तो इसके दो डेफिनेशन हो सकते हैं एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और यू कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। तो हमारे पास दो डेफिनेशन हो गए। तो अब ये फॉर्मूले टाइप में हो गया। तो एक्सेलरेशन का नोटेशन हम स्मॉल a लेते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी वो v हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u हो गया और टाइम क्या होगा t हो गया। तो ये फॉर्मूला है जो क्या करेगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ना वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो यू कैन नॉट कंसिडर देयर इज अ एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, आप इमेजिन करो यू आर ड्राइविंग अ बाइक ड्राइव कर रहे हो, बिकॉज ऑफ सम रीजन यू आर फाइंडिंग देयर इज अ नीड टू चेंज द स्पीड, यू नीड टू इंक्रीज द स्पीड। आपने क्या कहा, स्पीड इंक्रीज करने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू मूव एक्सेलरेटर। वर्ड पे फोकस करना, यू फोकस ऑन द वर्ड एक्सेलरेटर। सो यू आर गोइंग टू मूव द एक्सेलरेटर। आप एक्सेलरेटर मूव करते हो तो वेलोसिटी चेंज होता है। इफ velocity is not changing, it's mean that accelerator is not working. Accelerator वर्क नहीं कर रहा, मतलब acceleration का वैल्यू क्या है, 0 है। If velocity will not change, there is a no acceleration. So velocity has to change. अब हमारे पास ना दो चीजें देखो आप, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब वो ट्रेवल करता है तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब सेम ही डायरेक्शन अगर वो यूज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो उसमें अगर वो जो वेलोसिटी है ना वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे आप अगर लेना है तो आप इसको आगे एक्सटेंड कर लो, आप यहाँ पे लिख लो फॉर यूनिफॉर्म मोशन। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, जब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर कवर कर रहा है, तो मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू u है, तो सम टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू u ही रहेगी, और जो टाइम का वैल्यू क्या हो गया, t हो गया। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। तो ये क्या हो जाएगा, v का वैल्यू इज ऑल्सो u एंड u का वैल्यू इज u ओनली अपॉन t। तो क्या होगा, 0 अपॉन t इक्वल टू 0। तो जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। एंड व्हाट विल बी द यूनिट, यूनिट को भी देख लेते हैं। तो अगर आप यूनिट की बात कर रहे हो तो यूनिट क्या होगा, यूनिट जो ऊपर वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड था, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है और टाइम का क्या सेकंड है। तो पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और अगर किलोमीटर के टर्म में लोगे तो क्या होगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। अब हम ना किलोमीटर की वैल्यू को ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज आप याद रख लेना, एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। फॉर यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एज आई सेड कि हम यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके देखेंगे कि किसी वैल्यू को, कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है, अगर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखते हो 1 किलोमीटर पर आवर, इट इज व्हाट 1 किलोमीटर पर आवर। आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है उसको मीटर में, तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 1000 मीटर होगा। बट अगर आर को आप कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या होगा, ये 60 मिनट होगा। अभी तो मैं मिनट में कन्वर्ट किया, 1 आर का वैल्यू 60 मिनट, फिर वापस से क्या 1000 मीटर, और अब मैंने मिनट को किसमें, सेकंड्स में कन्वर्ट किया।
तो 60 इंटू 60 क्या होगा, सेकेंड होगा, तो दिस 0 0 कैंसिल। सो फाइनली क्या मिल रहा है हमको, 1 किलोमीटर और ये 1 आवर हो गया, तो ये क्या होगा 1 किलोमीटर पर आवर एक्चुअली है, तो मतलब ये आर की वैल्यू भी 1 ही होगी। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 6 इंटू 6 का होगा 36, ये क्या है मीटर पर सेकेंड। तो 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा एंड 2 8 जा, तो ये क्या हो गया, इफ आई एम कन्वर्टिंग 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू को मीटर पर सेकेंड में, देन आई नीड टू मल्टीप्लाई दैट क्वांटिटी बाय 5/80, देन इट विल टर्न इनटू मीटर पर सेकेंड। अभी एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए ले लो आप, एग्जांपल कोई वैल्यू है 54 किलोमीटर पर, जैसे ना v का वैल्यू है, कोई वेलोसिटी है या स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, हमको किसी रीजन से इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हाउ विल यू कन्वर्ट, तो हमने क्या किया, इसको 54 है, इस क्वांटिटी को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आंसर किसमें आएगा, मीटर पर सेकंड में, तो 18 3 जा, तो कितना हो जाएगा फाइनली 15 मीटर पर सेकेंड। इट्स मीन बॉडी विल ट्रेवल 54 किलोमीटर इन 1 आवर, इसका मतलब ये हो गया, और यहां पे मतलब क्या हो गया, बॉडी विल ट्रेवल 15 मीटर इन 1 सेकेंड। तो ये आपको ना 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका रेट देगा, और वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका रेट देगा। नाउ वी कैन टेक अनदर एग्जांपल। सो you got 144 kilometer per hour if I'm taking. So I'm taking perfect number so that it can be cancelled. So 144 divided by 5/18 multiply by 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 18 8 जा, ठीक है। सो क्या होगा, 8 5 जा 40 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड। आई होप वॉट एवर वी डिड अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। सो ये टर्म्स आपके लिए नए हैं, बिकॉज इन 8th स्टैंडर्ड यू हैव नॉट डन things related to formula and all. Whatever you have done, that was very basic. So now we are going to discuss about formula and all and how to implement those things. So अब थोड़ा सा क्या आपको concentrate करने की जरूरत है. You need to be little aware about the formula and all. You need to understand the meaning of each and every formula, because the meanings are going to help you in simplifying numerical. Otherwise you will have great difficulty. Great difficulty in the sense, if you are not going to practice, if you are not going to understand, then there will be little confusion while solving numerical. Thank you very much.